Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? One of you please confirm. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You're audible. All right, let's begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inshallah, we'll continue with our golden stories of Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, and we have completed the power of prayer of Al-Ala ibn al-Hadrami radiyallahu anhu. Going forward, I think within this week, inshallah, we'll be completing this book, inshallah, bi'idhnillah. Hardly few sessions, maybe 3-4, and then we are done. Then, inshallah, we'll begin with Ar-Rahiq al-Maktoum. And bi'idhnillah, after that, we will continue with the Umar ibn Khattab radiyallahu anhu's biography. So, alhamdulillah, hope so. Allah give us istiqamah and accept this small effort from us. Ameen ya Rab. Okay, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni yanfa'ni wa zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiban, 'amalan mutaqabbala. Ameen ya Rabbil Alameen. Ameen wa ajma'in. Riding across water. Those who managed to escape went to Darain, a famous seaport in Bahrain. There they boarded ships and prepared to leave the region. Al-Ala al-Hadrami radiyallahu anhu then decided to attack the enemy in Darain. But by the time Al-Ala radiyallahu anhu and his men reached the seaport, the apostates had already cast off and were sailing towards safety. Again, we're talking about Al-Ala al-Hadrami radiyallahu anhu. जो दरेन से escape कर गए थे, वो दरेन is a place, a famous seaport in Bahrain. तो वहां पर उन्होंने ships ली और वो region को छोड़ने के लिए तैयार हो गए. तो अला अल हदरमी रदियल्लाहु अन्हु ने डिसाइड किया कि वो दरेन को अटैक करेंगे, द सी पोर्ट को अटैक करेंगे. बट बाय द टाइम अल अला पहुंचे अपने आदमियों के साथ, काफी सारे मुर्तद जो थे वो ऑलरेडी निकल चुके थे. अल अला रदियल्लाहु अन्हु न्यू दैट इवन विद ships they would not catch them, so he rode into the sea on horseback, saying, O most merciful of the merciful ones, O all wise of most generous one, O the one, O As-Samad, the self-sufficient master, whom all creatures need. He neither eats nor drinks. O ever-living one, O the one who sustains and protects all that exists, O possessor of might and majesty, none has the right to be worshipped but you, O our Lord. He then ordered his soldiers to do the same, so they all entered the sea on their riding animals. अब ऐसा था कि ये मुर्तद जो थे वो रवाना हो गए थे शिप्स में, and it was very difficult कि वो अगर शिप में आते तो भी वो उनको पकड़ नहीं पाते. तो अल्लाह रदियल्लाहु अन्हु ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने दुआ की अल्लाह से. the power of prayer is what we are discussing, क्योंकि उनकी जो एक क्वालिटी थी, the most significant quality of Ala al-Hadrami was his faith, his conviction in Allah Azza wa Jalla and in the power of the prayer. कि दुआ जो है यानी इस कॉन्फिडेंस के साथ और इस होप के साथ की जाए कि वो कबूल होनी है. तो what he did now, see, he is asking for something impossible. जहां पर पानी में शिप्स चलना है, ठीक है, he is thinking out of the box. वो अपने हॉर्सेस के साथ पानी में आ रहे हैं, and he is praying Allah Azza wa Jal, he is doing his hamd sana, and he is hoping that he will be able to ride the horses inside the water. यानी वो पानी के ऊपर शिप्स की तरह अपने घोड़ों को लेकर चल रहे हैं. अब उन्होंने तो खूबसूरत बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला की हम्द सना की, ओके, और फिर वो अपने साथियों को भी कह रहे हैं उसी तरीके से जाने के लिए. या अर्रहमान अर्रहीम, या हकीमू, या करीमू, या अहदू, या समदू, या हय्यू, या कय्यूमू, या ज़ुल जलाली वल इकराम, ला इलाहा इल्ला अंता या रब्बना. ब्यूटीफुल दुआ, माशाअल्लाह. आई विल ट्राई टू शेयर दिस थिंग इन द ग्रुप. बट इतने खूबसूरत अल्फाजों से अल्लाह ताला के बेहतरीन नाम और अस्मा सिफात से वो अल्लाह ताला को याद करके he started riding the animal and he ordered his army also to do the same. And by the izn of Allah, mashallah, the Almighty, they crossed the bay as if they were riding on a sand. Can you imagine? अब again ये miracle है. आप देखें कितना खूबसूरत inspiring incident है जो impossible को possible कर देता है. मतलब just imagine the kind of confidence मूसा अलैहि सलाम had कि फिरौन की आर्मी उनके कत्ल के लिए पीछे दौड़ रही है. He is along with those believers जो उनके जो साथी थे उनके साथ वो रिवर नाइल के सामने खड़े हैं. And imagine Allah is there. He knows very well अल्लाह की मदद आएगी. See the confidence. और वो जो है नाइल का सीना फट के रास्ता बन रहा है और वो जा रहे हैं, गुजर रहे हैं. मतलब these are the things that we have to develop in ourselves. हम लोगों को जो है ना power of prayer
मिराकल्स ऑफ अल्लाह, पावर ऑफ अल्लाह, कभी इस पे शक शुबा नहीं होना चाहिए, वसवस नहीं आने देना चाहिए. And look at him now, Ala al-Hadrami. Yani for the first time I'm coming across this incident and I feel so nice, mashallah. Yani मेरा और इस पे दुआ पे, the power of दुआ पे बहुत यकीन पुख्ता होते जा रहा है, सुभान अल्लाह. So उन्होंने पानी के ऊपर इस तरह से अपने घोड़े दौड़ाए जैसे कि वो सैंड पे दौड़ रहे हो, लैंड पे दौड़ रहे हो, सुभान अल्लाह. Miraculously, none of their riding animals' hooves were immersed in water. यानी आप सोचें, अभी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया अल्लाह ताला ने, कि उनके जो हूफ्स थे, उनके जो फीट थे, वो एकदम ऊपर सतह पर थे जैसे कि लैंड पे हैं, बिल्कुल डूबे नहीं. इन द स्पैन ऑफ अ डे दे caught up and killed all the enemy soldiers and returned with captives and a great deal of war booty. अल्लाह ने उनको कामयाबी दी. किस तरीके की कामयाबी दी? उनके पास जो काफिर मुर्तद थे उनको उन्होंने बंदी बनाया, कैप्टिव्स बनाया, दुश्मनों को कत्ल किया और अच्छे खासे माल गनीमत लेके वो रिटर्न हुए. Throughout their sea expedition, they did not lose a single thing. यानी अब आप देखें, जब वॉर होती है, लड़ाई होती है, दो तरफा फायदा, दो तरफा नुकसान होता है, लेकिन इनका कोई नुकसान नहीं हुआ, सुभान अल्लाह. When they returned safely to shore, Al-Ala radiallahu anhu distributed the war booty, giving 6,000 dinars of dirhams to each rider and 2,000 to each infantryman. He then wrote to Abu Bakr radiallahu anhu informing about their victory, and Abu Bakr radiallahu anhu wrote back commending him for his efforts. अब इनकी दूसरी खासियत देखें. Believing in the power of Allah, in the power of dua. Okay, that is the first significant quality. Second is being generous with the people under him. जब उनको बहुत ज्यादा माल गनीमत मिला तो उन्होंने एक एक आर्मी को जो हॉर्स पे थे उसको कितना दिया? 6,000 दिनार या दिरहम दिए, और जो इन्फेंट्री ऑन फुट थे उनको 2,000 दिए. और फिर उसके बाद अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया, जो उनकी एक हायरार्की है, जो उनका प्रोटोकॉल है. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को पूरी बात का जायजा दिया, इन्फॉर्म किया अपनी विक्ट्री के बारे में, एंड देन अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको बहुत एनकरेज किया, उनकी तारीफ की. One of the witnesses of both miracles was a Christian monk from Hajar who had decided to accompany the Muslim army. When the Muslims achieved victory, the monk embraced Islam. Subhanallah. अब आप देखें कितना खूबसूरत दावा का तरीका है. मुस्लिम आर्मी को अकम्पनी करने के लिए एक क्रिश्चियन मॉन्क था, ओके, उसका नाम था हजर. वो दोनों मिराकल उसने देखे. एक पहला मिराकल तो अलाल हदरमी का था, जब पानी फूट पड़ा था रेगिस्तान में, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, कैमल्स जो थे उनके सारे सामानों को लेकर वाइल्ड होके बाहर भाग गए थे. तो ये पूरी आर्मी जो बटालियन थी, विदाउट वाटर, विदाउट एनीथिंग, वाज स्ट्रैंडेड इन द डेजर्ट. तो उस वक्त जब अलाल हदरमी ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने एक चश्मा जो है उनके पास बिल्कुल जारी हो गया था, पानी का फूटा. अब सेकंड मिराकल उसने देखा कि ये घोड़े जो हैं समुद्र पे जैसे लैंड पे दौड़ रहे हैं वैसे दौड़ गए. तो जैसे उसने देखा, देन व्हाट ही डिड, ही एक्सेप्टेड इस्लाम. After why he did so, he said, I feared that Allah would transform me into pig or some other animal if I didn't embrace Islam. I had this fear because I witnessed so many clear miracles. He became a good practicing Muslim and the companions would listen to him. They probably refers to Israelite narrations. यानी उससे पूछा गया कि भाई तुमने क्यों तुम दीन कबूल किया? कहते मैंने मेरी आंखों से मिराकल्स होते हुए क्लियरली देख लिया और मुझे डर है. डर ये है कि अगर मैं दीन को कबूल ना करूं तो हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे पिग में कन्वर्ट कर दे या किसी और एनिमल में कन्वर्ट कर दे. एंड देन सुभान अल्लाह, ही बिकेम अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड ही यूज्ड टू नरेट नरेशंस. यानी वो अपनी इजराइलेट नरेशंस करता था. मगर आपको पता है कि ये सारी आसमानी किताब थी, उस वक्त तक वो अनकरप्टेड थोड़ी सी थी, थोड़ी सी ऑफ कोर्स टेम्परिंग हुई थी, मगर देयर वर फ्यू थिंग्स व्हिच वर ट्रू. तो वो अपने इजराइलेट्स के नरेशंस सुनाता था. सो अल्हम्दुलिल्लाह, अ ब्यूटीफुल एंडिंग टू अ ब्यूटीफुल miraculous story. Compiling the noble Quran. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died, the Quran was not compiled in the form of a single book. जैसे हमें पता है, इस बात का हमें नॉलेज है कि कुरान जो मसहफ हमारे हाथ में है, इतने अच्छे हार्ड बुक बाउंड एंड कंपाइल्ड फॉर्म में, इन सीक्वेंस एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उस तरीके से नहीं था. अलग अलग जो थे उसके सुहूफ या यू कैन से इन पार्ट्स वो था. तो क्या डिसाइड किया और क्यों इसके बारे में सोचा गया था? Parts of it were memorized on leather parchments and bones, and so when many companions who had the Quran memorized died on the day of Yamama, their loss signified much more than the departure of noble and pious Muslims. It meant a possible tragic loss of the Quran, or at least some of its verses and chapters. अभी यमामा की जंग में बहुत सारे जो सहाबास थे वो कत्ल शहीद हो गए थे, तो इस वजह से कुरान जो था वो यानी बोन्स के ऊपर या लेदर के ऊपर ऐसे पार्ट्स बाय पार्ट लिखा हुआ था, या फिर सबसे बेस्ट तरीका जो था मेमोराइज किया हुआ था काफी सारे सहाबाज ने. लेकिन जब
यमामा में बहुत सारे जो कत्ल हो गए थे या शहीद हो गए थे सहाबा, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हो गया था कि हमारा जो लॉस है वो नहीं होना है, कोई वर्सेस या कोई चैप्टर्स का भी लॉस नहीं होना है। द फर्स्ट पर्सन टू परसीव द डेंजर एंड द नेसेसिटी टू टेक इमीडिएट एक्शन वाज उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु। तो इस चीज का जो है खतरा किसने महसूस किया? पहले उमर इब्न खत्ताब ने महसूस किया। One second, guys. ओके तो उमर इब्न खत्ताब को लगा कि ये बहुत जरूरी है कि हम कुरान को अच्छी तरह से कलेक्ट करें, कंपाइल करें और उसको प्रिजर्व करें। शॉर्टली आफ्टर द बैटल ऑफ यमामा, अबू बकर as-Siddiq रदियल्लाहु अन्हु called for Zayd ibn Thabit al-Ansari रदियल्लाहु अन्हु. When Zayd रदियल्लाहु अन्हु went to Abu Bakr रदियल्लाहु अन्हु, he saw Umar रदियल्लाहु अन्हु sitting beside him. Abu Bakr radiallahu anhu then said to Zayd radiallahu anhu, verily Umar radiallahu anhu came to me and said, many of the Qur'an means those who had the entire Qur'an memorized, died on the day of Yamama, and I fear that many other Qur'an will die in future battles and conflicts, and the dangerous results will be loss of much of the Qur'an. Therefore, I think that you should order someone or some committee to compile the Quran in one form. I said to Umar radiallahu anhu, how can I do something that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam didn't do himself? Umar radiallahu anhu said, by Allah, this is something good that you must do. Umar radiallahu anhu continued to come back to me with the same advice until Allah opened my heart just as he did Umar's heart, and regarding the compiling of Quran, I came to hold the same opinion as Umar radiallahu anhu. अभी मैं आपको एक और बात बता दूं, ओके ऐसा था कि कई बार कई चीजें, जैसे अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वफात हो गई थी, तो कई सारे मसले होते थे जो कि करने वाले होते थे जिसमें अल्लाह की रजा शामिल होती थी, तो अल्लाह ताला used to put that thing in their hearts. So what happened that अल्लाह ताला ने उमर रदियल्लाहु अन्हु के दिल में ये बात डाली कि कुरान को इस तरीके से प्रिजर्व किया जाए। अब उनका दिल तो अल्लाह ताला ने खोल दिए थे। When he went to अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु और उनको कहा कि आप चंद लोगों को कलेक्ट करो, बिकॉज जैसे यमामा में बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए, आगे की फाइट्स में और ज्यादा शहीद हो सकते हैं, तो हमें जो है कुरान को प्रिजर्व करना है। नाउ टू प्रिजर्व कुरान, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी? दैट वी हैव टू कंपाइल इट इन अ हार्ड बाउंड बुक, यानी एक जगह पे उसको इकट्ठा करना है। तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो आप मुझे करने के लिए क्यों कह रहे हैं? एज यू नो, हम लोगों ने काफी डिस्कस किया इन आवर प्रीवियस सेशंस दैट अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु एंड उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु always had some differences in their opinions, but subhanallah, the way they used to resolve their conflicts, not by getting offended or by defending their opinions or disrespecting each other's opinion, वो जो है एक दूसरे की ओपिनियन को क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट किया करते थे, और फिर जो सही है उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी ईगोस को साइड में रख के वो एक नतीजे पे पहुंचते थे। Similarly, when Umar ibn Khattab came to him and told him, he didn't agree in the first place, but then वो दोबारा से उमर इब्न खत्ताब आए रदियल्लाहु अन्हु और उन्होंने फिर से सेम जो है वो मसला बताया, एंड देन बाय देन अल्लाह अज़्ज़ा वजल हैड मेड हिज हार्ट आल्सो ओपन, और उनके भी दिल में ये बात आई एंड ही अग्रीड. Zayd radiallahu anhu probably had no idea what was about to be assigned the greatest and the most important mission of his entire life. Abu Bakr radiallahu anhu went on to say, verily you are a young man who is wise and intelligent, and we have nothing to accuse you of, and you used to write down revelation for the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Therefore, search for the various parts of the Quran and compile them all into one book. अभी जैद रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो यंग थे, इंटेलिजेंट थे, वाइज थे, और वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वही आती थी तो ही वाज द फर्स्ट हैंड पर्सन यू कैन से, जो कि सहाबास में से इमीडिएटली ही यूज्ड टू राइट इट डाउन. तो ये इतना इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम जो है अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने जैद रदियल्लाहु अन्हु को दिया. एंड बाय देन जैद रदियल्लाहु अन्हु डिडंट हैव एनी आइडिया कि वो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट एक मिशन या एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले. तो उन्होंने उनको कहा कि आप जो हो यंग, वाइज, इंटेलिजेंट हो, हमें आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, आप वही जो है वो लिखा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इसीलिए आप ढूंढो, रिसर्च करो, कलेक्ट करो और उसको कंपाइल करो एक बुक की शक्ल में. Zayd radiallahu anhu replied, by Allah, had you charged me with the task of moving a mountain from one place to another, you would not have placed a greater burden upon me now by ordering me to compile the Quran. वो यानी इतने इजी और इतने प्यारे लफ्जों में अपनी कैफियत को बयान कर रहे हैं कि अगर आपने मुझे एक पहाड़ को मूव करने का टास्क दिया होता तो वो शायद इस टास्क से इजी होता, बिकॉज एक भी गलती अगर हो गई या ऊपर नीचे कुछ मिसिंग हो गई तो यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरर. तो दिस पीपल वर अवेयर कि वो एक एक चीज जो है बड़ा सोच समझ के और देखभाल के किया करते थे.
अनलाइक अस, जो हम लोग बैठे बैठे फतवाज देते रहते हैं और हराम हलाल डिक्लेयर करते रहते हैं अपने तरीके से, जो है हमारे दीन के मसले मसाइल फिक्की इश्यूज को हम अपने हिसाब से मोड़ते जोड़ते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस एंड गिव अस हिदायत, आमीन या रब। लेकिन आप देखें ये लोग एक भी टास्क करने से पहले कि क्या उनका तर्ज अमल होता था, दे यूज्ड टू नो द सेंसिटिविटी एंड द मैग्नानिमिटी ऑफ द इशू। उसी तरीके से इनको भी पता था कि it's a huge task, a very huge task, and it's not going to end in one place. This is going to go forever till eternity. So he realized how greater this job is. Zayd radhiyallahu anhu later said, I then searched out for the various parts of the Quran, finding them preserved on palm branches, on the surfaces of flat stones, in the hearts of the men, on pieces of leather, and on the shoulder bones of camels and sheep. I continued to search out for the Quran until I found the last part of the chapter, At-Tawbah, with Abu Huzayma al-Ansari, a part of the Quran which I did not find with anyone else. अब ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु इज ऑन द मिशन, अलग अलग जगह से प्रिजर्व किए हुए लेकर आ रहे हैं। कौन कौन सी चीजों पे से? फ्लैट स्टोन्स पे, लोगों के दिलों में हिफ्ज जो हुआ था उससे, लेदर जो है उसके पीसेस पे, शोल्डर बोन्स कैमल्स और शीप की जो है बोन्स के ऊपर, और वो कंटिन्यूसली कलेक्ट करते रहे, ढूंढते रहे, रिसर्च करते रहे। आखिर में जो लास्ट चैप्टर अत-तौबा जो था उनको कहाँ से मिला? एक सहाबा जिनका नाम था अबू खुजैमा अल अंसारी। तो अबू खुजैमा अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के पास उनको अत-तौबा की वर्सेस मिले, और ये वो वाला पार्ट ऑफ कुरान था जो किसी के पास नहीं था। सुभानअल्लाह। Verily, there has come unto you a messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from amongst yourself, whom you know well. It grieves him that you should receive any injury or difficulty. He, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is anxious over you to be rightly guided, to repent to Allah and beg him to pardon and forgive your sins, so that you may enter paradise and be saved from the punishment of the hellfire. For the believers, he is full of pity, kind and merciful. ये verses हैं surah number 9, verse 128. The collected scrolls of the Quran stayed with Abu Bakr radiallahu anhu until he died, and then with Umar radiallahu anhu until he died, after which they were passed on to Hafsa bint Umar radiallahu anha. यानी collection हो गया, Abu Bakr radiallahu anhu के पास थी original master copy, and then it went to whom? It went to Umar ibn Khattab radiallahu anhu, और उमर के बाद Hafsa bint Umar radiallahu anha के पास, and then we know the history. Anyways, इसकी बहुत अच्छी स्टडी है एक उलूमुल कुरान, यानी द साइंसेस ऑफ कुरान के अंदर जो हिस्ट्री ऑफ कुरान की अगर आपको बताया जाए तो वो पूरी एक इट्स व्हाट डू यू कॉल इल्म इन इटसेल्फ, बहुत वाइड है, बहुत मजेदार है, एंड उसका बेसिक हमने हमारे कोर्स में किया हुआ है। तो इंशाल्लाह इफ I get a chance, I will share the notes with you. It is a wonderful thing to know कि कैसे हमारे कुरान की जर्नी हुई है, because वो जानने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप कभी अपना मसहफ अपने हाथ में पकड़ोगे तो you will thank Allah करोड़ times, because ये इतनी जर्नी को होते हुए आपके पास पहुंचा है। Subhanallah, it's a neema, it's a miracle. Lifelong love of the Quran. Abu Bakr radiallahu anhu's lifelong attachment to the Quran was truly amazing. He memorized the holy book, contemplated its meaning and applied its teaching. अब हमारे लिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? जैसे मैंने आपसे कहा कि हर किस्सा, हर इंसिडेंट, हर सेगमेंट जो है हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव देकर जाएगा। अला अल हदरमी रदियल्लाहु अन्हु से हमने कुछ सीखा, हमने इनकी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व जो उमर रदियल्लाहु अन्हु और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु करते हैं उससे हमने सीखा ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु का क्या सेंसिटिविटी थी अबाउट द सब्जेक्ट, और जब रियलाइज करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जाए तो किस हद तक उसको अदा करने के लिए इंसान मेहनत करे। उसके बाद अब इधर हम देख रहे हैं अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का जो कुरान के साथ मामला था, किस तरीके का मामला था, किस तरीके से वो अटैच थे। ही यूज्ड टू मेमोराइज इट, ही यूज्ड टू कंटेम्पलेट ऑन इट्स मीनिंग एंड अप्लाइड इट्स टीचिंग। तीन चीजें, तीन नुक्ते, उसको हिफ्ज करना, उसके बाद उस पर तदब्बुर करना, और फिर उसको अपनी निजी पर्सनल जिंदगी में अप्लाई करना। जब तक कि हम ये चंद चीजें नहीं करते कुरान के साथ तो हम जस्टिस नहीं कर रहे, हम कुरान का हक अदा नहीं कर रहे। हमें ये अच्छी तरह से पता है कुरान जो है हमारी कब्र में या आखिरा में हमारे हक में या हमारे अगेंस्ट में नौजुबिल्लाह होगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि कुरान जो है हमारे हक में खड़ा हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसका हक अदा करना पड़ेगा। तो लेट्स डू इट। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पोर्शन, बट एक क्वालिटी स्टडी इंशाल्लाह हम करेंगे। If he was asked about the meaning of a verse and if he knew its meaning, he would impart his knowledge. But if he didn't knew the meaning of a particular verse, he would reply, what earth will carry me and what sky will give me shade if I say about the book of Allah a meaning that Allah did not intend. Subhanallah, a बहुत important point. Again, we are coming to a very important point here.
उनका ऐसा मामला था कि उनसे अगर किसी ने किसी पार्ट ऑफ कुरान कोई वर्स के बारे में कोई ट्रांसलेशन तफसीर या कुछ उसके बारे में पूछा तो जो उन्हें पता होता था वो बता देते थे, जो चीज उन्हें पता नहीं होती थी तो वो क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि कौन सी जमीन मुझे उठाएगी या कौन सा आसमान मुझे शेप देगा, कि अगर मैंने अब अल्लाह की किताब में से ऐसा कुछ कहा जो सही नहीं था और जो अल्लाह ने इंटेंड नहीं किया था उसको मैं उस तरीके से बयान करूं। यानी आप देखें कितने कॉन्शियस थे, कितने, इसको कहते हैं तकवा, इसको कहते हैं being fearful of Allah Azza wa Jal. And again I say we become the self-renowned muftis which we have to avoid. And हमें भी जब तक कि किसी चीज का पूरा पूरा इल्म ना हो तो हम अपने तरफ से कोई भी तोड़ जोड़ ना करें, स्पेशली इन मैटर्स ऑफ दीन, इन मैटर्स ऑफ कुरान, इन मैटर्स ऑफ हदीथ. So you have to be very careful. May Allah increase us in our ilm. Actually, I don't say कि you run away and escape yourself, because there is another hadith which says even if you know a verse, take it forward. But if you know the verse, यानी अपनी half incomplete knowledge नहीं, नीम हकीम खतरा जान है. So whatever you are sure of, बहुत ज्यादा आप उसको यानी आपके पास उसकी confirmation है, then and then only you share it. Otherwise, don't become the self-renowned muftis. So, alhamdulillah, the 3-4 points that we wanted to pick from here, alhamdulillah, I think I made it very clear. Brilliant military strategist. Of course, ये अभी इतना हम जितने हमने fights और wars और ग़ज़वात के बारे में हमने देखा, we knew about this. Let's go further. Brilliant military strategist. When he chose Al-Hira as a meeting place between the two armies, Abu Bakr radiallahu anhu showed a profound understanding of Iraq's geography. From a military perspective, Al-Hira was strategically important for a number of reasons. अब एक जगह का किस्सा हो रहा है कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने एक जगह जो इराक में है जिसका नाम अल-हिरा है, उसको मीटिंग प्लेस बनाया अपनी दो आर्मी के लिए. अब वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वो सेंटर में थी और मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा दोनों पार्टीज या दोनों आर्मी के लिए आसान थी. It was located near the major cities of Iraq. It was only 3 miles outside Kufa, and it would take a rider only a single day to travel from Al-Hira to An-Najaf. In 17th century, Iraq Al-Hira connected all the roads and traveling routes from all directions into the country. अब एक जो कुफा है उधर से सिर्फ 3 माइल्स का था ये अल-हिरा, और लोगों को सिर्फ एक दिन लगता था हिरा से नजफ में जाने के लिए. और 17th सेंचुरी में इराक में अल-हिरा एक ऐसी जगह थी जो सारे मेजर ट्रैवलिंग रूट्स को कनेक्ट करती थी. To the east, it was connected to Al-Madina by the Euphrates River. To the north, it was connected by the road to Heath, and by the Anbar Bridge, it was connected to Anbar. To the west, it was connected by a road to Asham and surrounding areas. Similarly, it was linked to Al-Abla in the region of Basra, to Kaskar, to Aswad, and to An-Nomiya. मतलब मेजर सऊदी का, मदीना का, उसके बाद इराक का, उसके बाद सीरिया का, सब मेजर एरियाज को वो कनेक्ट करता था मुख्तलिफ रस्तों से. Because of the topography of the region, whoever gained control of Al-Hira automatically gained control of all the land west of the Euphrates. Perhaps most importantly, Al-Hira was the nearest major city to Al-Madain, which was the capital of the Persian Empire. अब अल-हिरा ऐसा प्रोमिनेंट और इतना कॉमन एरिया था, तो अगर जो भी इस पोर्ट या इस एरिया को कैप्चर करता है तो मेजरली जो है वो आसपास के इलाकों को भी कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज वो एक मेन रोड है. यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स लाइक अ मेन रोडवे, मेन हाईवे. और ये जो था ये अल-मदियन जो कि पर्शियन कैपिटल एम्पायर को जाता है, उधर भी कनेक्ट करता था. The Persians were all too aware of the strategic importance of Al-Hira, as was made clear by their many attempts to regain control for it. For Muslims, Al-Hira also acted as a launching point from which Muslims armies attacked the Romans in the lands of Asham. अभी पर्शियंस को इसके बारे में अंदाजा था एंड वो अल-हिरा को कैप्चर करना चाहते थे. एंड मुस्लिम्स जो है उन्होंने अशाम की भी लैंड्स को, रोमन्स को जब अटैक करना था तो दे हैड यूज्ड अल-हिरा एज देयर पोर्ट, मेन लॉन्चिंग पॉइंट. Khalid radiallahu anhu, recognizing Al-Hira's importance, decided to make it a central command post for all military activities in Iraq. अब हमें पता है Khalid ibn Walid radiallahu anhu was another very smart, intelligent, young military personnel, और उनकी भी जो strategy होती थी वो बहुत, यानी उनका wide experience था. He was very skilled. So उन्होंने भी realize किया कि अल-हिरा बहुत important पोस्ट है, तो उसको उन्होंने सेंट्रल कमांड पोस्ट बना दिया. अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज जितनी भी इराक की थी उसके लिए अल-हिरा को उन्होंने सेंट्रल पोर्ट बना दिया. It was from Al-Hira that all the Muslim armies in the region were deployed.
Khalid radhiyallahu anhu would also send out men from there to collect the jizya tax and to patrol and protect the front lines. उधर ही से आर्मीज को जो भेजा जाता था, डिप्लॉय किया जाता था, और उधर ही से जिजिया भी कलेक्ट करने के लिए जाया करते थे, और पेट्रोलिंग प्रोटेक्टिंग द पीपल भी वहां से होता था फ्रंट लाइंस के ऊपर. In short, until all of Iraq could be conquered, Al-Hira acted as a temporary capital city of the Muslim-controlled part of the country. Eventually, with much of the Iraq under the control of Muslims, the leaders of various cities went to make peace with Khalid radhiyallahu anhu. After a short time, the vast majority of the people in the region had either embraced Islam or agreed to Khalid's terms for peace involving the payment of the jizya. अब आसपास के जो इराक के जो इलाके के chieftains थे, they knew how things are moving. So what they did, they either came to Khalid radhiyallahu anhu, उनसे सुलह कर ली, इस्लाम में दाखिल हो गए, या फिर वो जिजिया पे करने को राजी हो गए, बट उन्होंने सुलह कर ली. Muthanna ibn Harith radhiyallahu anhu, a native of Iraq, also played an important role in helping to conquer Iraq. He had proved himself in the campaign against the apostates in Bahrain. Knowing his worth, Abu Bakr radhiyallahu anhu ordered Muthanna radhiyallahu anhu to continue his da'wah, propagation of Islam among the Arabs of Iraq. He also ordered him to serve under Khalid radhiyallahu anhu. It was a measure of Muthanna's humbleness that he agreed to do so, considering that he had fought battles in Iraq even before Abu Bakr radhiyallahu anhu decided to launch an all-out invasion of the Persian Empire. अब एक बहुत important सहाबी जो कि इराक के मेजर कॉन्कर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया था, वो थे मुथन्ना इब्न हारिस रदियल्लाहु अन्हु. अब इन्होंने जो अपना एक बहुत अच्छा नाम क्रिएट किया हुआ था, ही हैड फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द कुफार्स एंड मुर्तद, और बहरीन के जो वॉर थी उसके अंदर भी वो काफी ज्यादा अपने आप को उन्होंने प्रूव किया था. तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु जानते थे कि वो बहुत स्किल्ड है, उनका दावा भी बहुत जबरदस्त होता था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको खालिद इब्न वलीद के अंडर एम्प्लॉय कर दिया था. तो मुथन्ना जो थे वो काफी आजिज थे, एंड ही एग्रीड टू डू दैट, एंड ही हैड फॉट मेनी बैटल्स इन इराक. यानी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को पता होने से पहले भी उन्होंने काफी सारा इराक में बैटल्स फाइट किया था, एंड फाइनली वो लॉन्च करने के लिए तैयार थे पर्शियन एम्पायर पे द ऑल आउट इन्वेजन प्लान. लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन. Great judge of character. Abu Bakr radhiyallahu anhu was a great judge of character. Perhaps there is no better example of this than when Khalid radhiyallahu anhu, while on his way to Iraq, asked Abu Bakr radhiyallahu anhu to send reinforcements. Instead of a battalion, Abu Bakr radhiyallahu anhu sent a single man, Al-Qaqa ibn Amr at-Tamimi radhiyallahu anhu. When asked about the decision, Abu Bakr radhiyallahu anhu replied, "An army does not lose when it has the likes of this man." अब आप देखें कि एक और एक क्वालिटी उनकी, कि वो जो इंसान के कैरेक्टर को एक इंसान का जायजा लेना, उसके बारे में चंद चीजों का जायजा लेना, इवन दैट इज अ स्किल, एंड दैट स्किल वाज वेरी शार्प एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इन अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु. कैसे हम लोग उस पर ड्राइव होते हैं. एक बार खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने इराक में जाते हुए अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि मुझे जो है रीइंफोर्समेंट्स चाहिए, मुझे थोड़ी और आर्मी की सप्लाई या आर्मी की जरूरत है. इस पर एक पूरी बटालियन देने के बजाय अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने किसको सजेस्ट किया, अल-क़ाक़ा इब्न आमिर अत-तमीमी रदियल्लाहु अन्हु. अब यानी खालिद रदियल्लाहु अन्हु वाज शॉक लिटरली कि उन्होंने एक बटालियन मांगी और इन्होंने एक आदमी को रेफर किया. तो फिर उस पर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक आर्मी हारती नहीं है जब उनके पास अल-क़ाक़ा रदियल्लाहु अन्हु जैसा सोल्जर हो. तो अब हम देखते हैं कि ये अल-क़ाक़ा रदियल्लाहु अन्हु का क्या स्टोरी है. The feats of Al-Qaqa radiallahu anhu on the battlefield confirmed that Abu Bakr radiallahu anhu was a good judge of people's characters, qualities, talents, and skills. Al-Qaqa radiallahu anhu showed his skills just before the major offensive began in Iraq. He helped Khalid radiallahu anhu deal with the treachery of the Persian enemy leader Hurmuz, an unscrupulous evil man who had challenged Khalid radiallahu anhu to a duel. Hurmuz had no intention of fighting Khalid. He simply wanted to set a trap for him, kill him, and thereby demoralize the Muslims. Shortly after the duel started, Hurmuz's guards attempted to attack Khalid, but Al-Qaqa radiallahu anhu, who was watching nearby with a group of horsemen, attacked the guards and killed them. Khalid radiallahu anhu then killed Hurmuz, and the rest of the Muslim army quickly routed the enemy. अब ऐसा था कि एक when they are trying to make plans to attack the Persian Empire, एक पर्शियन लीडर था जिसका नाम था हुरमुज. अब ये जो था ये बहुत ईविल, बहुत ज्यादा चालाक, बहुत धोखेबाज टाइप इंसान था, और इसने क्या किया, इसने खालिद रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि भाई हम कुछ जो है
वो कर लेंगे, we will come to terms with each other. But असल में उनके दिल में चोर था. He wanted to create a trap करके खालिद रदियल्लाहु अन्हु को किल करना था और मुस्लिम आर्मी को डैमेज करना था. तो जब ये सारा मामला स्टार्ट हुआ तो हुरमुज के गार्ड आए और उन्होंने खालिद रदियल्लाहु अन्हु को अटैक किया. अब ये जो अलकाका रदियल्लाहु अन्हु थे, ये दूर से देख रहे थे अपने ग्रुप ऑफ हॉर्समैन के साथ, वो ये सारा माजरा देख रहे थे. इमीडिएटली ही केम अलोंग एंड ही किल्ड हुरमुज एंड हिज पीपल. और फिर उसके बाद सिचुएशन जो है वापस मुस्लिम आर्मी के कंट्रोल में आ गई एंड देन फिर वो एनिमी के रूट्स के तरफ चल पड़े. At the beginning of the battle, the Persian fighters had tied one another with chains to prevent them from fleeing, but faced with the brave and the fierce Muslim fighters, their strategy failed. The word for chains in Arabic is salasil, and so the battle became to be known as the Battle of Dhat as-Salasil. अब ये था कि कुछ जो सोल्जर्स होते हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं, तो वो भागे नहीं, इसीलिए पर्शियन फाइटर्स ने क्या किए थे, उन्होंने आर्मी वाले जो लोग थे सोल्जर्स, उनको चेनों से एक दूसरे के साथ बांध दिया था कि दे विल स्टे टुगेदर. लेकिन सुबहान अल्लाह मुस्लिम आर्मी के सामने इनकी ये स्ट्रेटजी काम नहीं आई. एंड अरबिक में सलासिल का मानी है चेन्स, तो इसीलिए ये जो बैटल थी इसको बैटल ऑफ धात सलासिल का नाम दिया गया. The quantity of war booty the Muslims gained that day was so large, it had to be loaded on 100 camels. Subhanallah. अब आप देखें ये जो इनकी जंग जो इन्होंने जीती, इसका माले गनीमत, इसके जो स्पॉइल्स ऑफ द वॉर थे उसको उठाने के लिए 100 कैमलों का इस्तेमाल हुआ. आप सोच सकते हैं कि कितना माले गनीमत अल्लाह ताला ने दिलवाए. More booty was secured after Khalid radhiyallahu anhu sent out small units of soldiers to round up enemy fighters holed up in various fortresses surrounding Al-Hira. अलहिरा के आसपास ये जितने भी दुश्मन थे वो लोग, उन्होंने होल्ड अप करके बेसमेंट में इधर उधर अपने आप को छुपाने की कोशिश की थी किलों के बाहर अलहिरा में. तो मुस्लिम आर्मी ने उनको भी उखाड़ दिया, यानी उधेड़ दिया. Khalid radhiyallahu anhu, obeying Abu Bakr's instruction to the letter, particularly regarding farmers who had not taken part in the battle, allowed them to keep their land and their crops. He then outlined the amount of zakat to be paid by those who embraced Islam. अब आप देखें कितना सोच समझ के और कितना कंपैशनेट वे है. वॉर हो रही है, वॉर का मामला चल रहा है, लेकिन उसमें भी क्या कर रहे हैं. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु अन्हु को कि फार्मर्स जो हैं, पुअर फार्मर्स, वो बैटल में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया, तो उनकी क्रॉप्स और लैंड को हाथ नहीं लगाया जाएगा, वो उन्हीं को दिया जाएगा. सुभान अल्लाह, रहम का मामला. ठीक है. और उसके बाद जिन्होंने जिजिया पे करना है वो जिजिया का फिक्स किया उन्होंने, अमाउंट आउटलाइन किया, ज़कात देना है, कितना देना है, जो दीन में आ गए, इस्लाम के फोल्ड में आ गए. फॉर दोज हु डिड नॉट बिकम मुस्लिम्स, खालिद रदियल्लाहु अन्हु इन्फॉर्म देम अबाउट द जिजिया टैक्स. तो मुस्लिम्स जो है वो ज़कात पे करेंगे और नॉन मुस्लिम्स जो है वो जिजिया टैक्स पे करेंगे, व्हिच वाज फार लेस देन द अमाउंट द फार्मर्स पेड इन द पास्ट टू द पर्शियन ओवरलॉर्ड्स. यानी जो वो पर्शियन को पे करते थे ना फार्मर्स, उससे भी कम था ये टैक्स, यानी किसी के ऊपर बोझा नहीं था. अल्हम्दुलिल्लाह, रहम का मामला हर जगह पे था. ऐसा नहीं कि दुश्मन है तो बस फिर लेकर बैठो उनको छीलो, ऐसा नहीं था. इट वाज रहम का मामला, जिससे कि लोग जो हैं फिर इस्लाम की तरफ माइल हुआ करते थे, बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज. जब वो देखते हैं कि इनके लीडर्स इस तरीके के हैं, ये हमारे बारे में सोचते हैं, ये हमारा खैर का सोचते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली दीन की तरफ माइल हुआ करते थे. Khalid radhiyallahu anhu sent 1/5 of the spoils to Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu in al-Madina and the rest he distributed among his soldiers. अब आप सोचिए, ये पूरा जो 100 कैमल के ऊपर जो वॉर बूटी थी उसका 1/5 हिस्सा, 1/5वां हिस्सा उन्होंने अल मदीना में भेजा और बाकी सारा अपने सोल्जर्स में बांट दिया. अब आप देखिए ये ऐसी तकसीम, सुभान अल्लाह, तो कौन यानी खुश नहीं होगा, क्यों बरकत नहीं होगी, क्यों हैंडफुल ऑफ सहाबाज वर एबल टू कॉन्कर द 1/3 ऑफ द ग्लोब, क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोगों के दिल साफ थे, गनी थे, they had the faith and fear of Allah Azza wa Jal. Khalid radhiyallahu anhu also sent Abu Bakr radhiyallahu anhu a hood that belonged to Hormuz. However, Abu Bakr radhiyallahu anhu sent it back to Khalid radhiyallahu anhu, informing that it was a reward for his brave feats on the battlefield. Perhaps unknown to both Abu Bakr radhiyallahu anhu and Khalid radhiyallahu anhu, that hood turned out to be worth 100,000 dinars or dirhams, a huge sum of money even in today's standards. अब एक हुरमुज का जो है ना, वो एक हुड था उसके पास. अब ये जो हुड था, उन्होंने खालिद इब्न वलीद ने रदियल्लाहु अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को भेज दिया. अब उन्होंने वापस इनको दिया एज अ गिफ्ट के आपकी ब्रेवरी, आपने जो ये कमाल अंजाम दिया है, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू.
जब उसको बेचा गया तो उसकी कीमत कितनी निकली? 100,000 दिनार या दिरहम, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है आज के स्टैंडर्ड के भी हिसाब से. इट्स अ वैल्यूएबल एसेट. It was valuable because it was embedded with jewels and had been in the possession of a Persian nobleman. अब जो है इसकी वैल्यू जो थी, हुड, it could be a robe or a cloak or something like that. तो उसके अंदर जो है हीरे जवाहरात प्रेशियस जड़े हुए थे और वो एक पर्शियन नोबलमैन को बिलोंग करता था, इसलिए वो एक्सपेंसिव था. तो बेसिकली इट वाज अ प्रेशियस थिंग, वैल्यूएबल एसेट था और उसकी कीमत आज के हिसाब से भी बहुत ज्यादा थी. तो आप देखें इनका, ये जो लोग हैं ये अपने मिशन ओरिएंटेड होते थे. इनका कोई दुनियावी या माल बटेरूं या अपने लिए प्लॉट्स एंड ज्वेलरीज और ये सब जमा कर लूं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, वो मकसद नहीं था. तो ऐसी खूबसूरत और ब्यूटीफुल क्वालिटीज जो पोजेस कर रहे हैं, तो क्यों ना अल्लाह उनसे राजी हो और क्यों ना उनको अल्लाह ताला जन्नत का लीडर्स बनाए और आला मकाम अता करे. बिकॉज दे वर सो सेल्फलेस, दे वर सो डिवोटेड, दे वर सो डेडिकेटेड. और उनका जो है सेल्फिश मोटिव नहीं रहता था, वो खैर के काम करते थे, सिर्फ देने वाला हाथ होता था उनका. सुभान अल्लाह. May Allah make us among those. Protecting the economy of conquered land. In his letters to commanders, Abu Bakr radiallahu anhu continually reiterated the importance of winning over the hearts and minds of a foreign citizen, particularly farmers. He wanted to strengthen foreign lands and not to destroy the infrastructures. Farmers had the valuable resources, so Abu Bakr radiallahu anhu sought to protect this sector. He wanted to make sure that people were still working the farms, fields, and gardens. One Islamic rules was entrenched. अब आप देखिए another beautiful quality even during the war time, यानी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ग्रीन लैंड्स है और जो अर्थ है उसको बर्बाद नहीं करना है. उनका मकसद ये होता था कि जो फार्मर्स है, लेट देम कंटिन्यू बिल्डिंग देयर फार्म्स, बिल्डिंग देयर फील्ड्स एंड गार्डन्स, और उस पे उनका काम जो है वो कंटिन्यूसली चलना है. क्योंकि इवन इन स्पाइट ऑफ दिस वॉर्स एंड स्टफ, जब मुस्लिम हुकूमत इंशाल्लाह आएगी तो उसको हमने ये सारी चीजें जो है, हरियाली जो है और जो अल्लाह की कुदरत है, नेचर है, उसको प्रिजर्व करते हुए चलना है. सो दिस इज सो ब्यूटीफुल. यानी वो उनकी दुश्मनी लोगों की भी, फार्मर्स की भी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आमादा थे. क्योंकि एंड ऑफ द डे इट इज अ क्रिएशन ऑफ अल्लाह. एंड ऑफ द डे वो अल्लाह की कुदरत और नेचर है और उसको डैमेज जिसने किया तो वो बर्बाद है. एंड वी कैन वेरी वेल सी द इफेक्ट्स हाउ these days wars happen and how do they destroy the greenery, how do they destroy the plantations, how do they destroy the rivers and the wells and all the natural infrastructure, man-made infrastructure को किस तरीके से बर्बाद किया जाता है और फिर उसके consequences को भी झेला जाता है, जो हम भी झेल रहे हैं और अस्तगफिरुल्लाह लाजिम आगे आने वाली जनरेशन को और भी ज्यादा झेलना पड़ेगा. Lion of the Muslims. Once the battle in Ilyas was over and the area secure, the Muslims entered the abandoned encampment of Jaban's army. They found a huge feast but no people. Khalid radiallahu anhu declared that the food was part of the spoils and that night it served as their dinner. Khalid radiallahu anhu then led his army towards Amghishia. The people of Amghishia, seeing Khalid's army, evacuated the city, leaving behind all their wealth. It was so much that Khalid's soldiers each received 1500 dirhams. अभी एक और एक बैटल जो इलियास बैटल था वो खत्म हुआ और वो एरिया को सिक्योर कर लिया गया, तो वो एक दूसरी एनकैंपमेंट में गए जो थी जबन्स आर्मी, और उधर उन्होंने बहुत सारा फीस्ट यानी खाने पीने की चीजों को पाया, बट कोई लोग नहीं थे, इंसान नहीं थे. तो फिर खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये जितना भी खाना पीना है उसको भी माले गनीमत में इंक्लूड कर दिया जाए. बस उस रात के लिए वो उनका डिनर बना था, यानी दे यूटिलाइज दैट. फिर उसके बाद खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी आर्मी जो है कहाँ पर लेकर गए, वो अमगीशिया. अमगीशिया इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. अमगीशिया के लोगों ने जैसे ही देखा कि खालिद रदियल्लाहु अन्हु की आर्मी आ रही है, उन्होंने झट से वो सिटी को इवैक्यूएट. अब देखिए कितना फियर था, कितना दबदबा था मुस्लिम्स का. कहाँ है वो दबदबा, कहाँ है वो ग्रेस? आज मुस्लिम शर्मिंदा है, आज मुस्लिम अपने मुसलमान होने पर मुंह छुपा के यहाँ वहां भाग रहा है, उसकी जान पे बनी गई है. क्यों ऐसा हुआ है? हमारी शान को क्या हो गया? दिस इज द रीजन. लोगों के दिल जो है वो खालिस नहीं है, उनके इल्म, उनका अमाल, उनकी हरकतें, उनके मामलात सब करप्ट हो गए हैं. बट इमेजिन व्हेन यू रीड ऑल दिस, यू फील सो हैप्पी, सो प्राउड. इस टाइप की शांति हमारी, सुभान अल्लाह. तो वो लोग जो थे उन्होंने इवैक्यूएट कर दिया सिटी, सब छोड़ छाड़ के वो भागे, और इतना माल उन्होंने पीछे छोड़ा कि हर एक सोल्जर को 1500 दिरहम्स मिले. Later on, when 1/5 of the spoils reached al-Madinah, as did the news of Khalid's army's victory, Abu Bakr radiallahu anhu exclaimed, "O group of Muslims, your lion!" Khalid radiallahu anhu had attacked another lion and taken away its piece of meat. Indeed,
Women are now failing to give birth to the likes of Khalid. This saying to the people of Al-Madinah spoke volumes about the level of respect Abu Bakr radiallahu anhu had for the supreme general of his armies. May Allah be pleased with Abu Bakr radiallahu anhu, Khalid radiallahu anhu, and all the Prophet's companions. The man who brought back this and other news of Muslims' victories to Abu Bakr radiallahu anhu was Jundul, a member of the Banu Ijl tribe and a skilled guide. Abu Bakr radiallahu anhu, impressed by Jundul's demeanor, gave him a young woman from the female captives. अब ये हुआ कि 1/5 यानी उनका एक वो पर्टिकुलर ब्रेकेज था, तो उसके हिसाब से 1/5वां हिस्सा जो है मदीने में जाता था. तो मदीने में जब ये पहुंचा और खालिद रदियल्लाहु अन्हु की इतनी सारी विक्ट्रीज, यानी ऑन हिज वे आप देखें पूरे वो जो एंटूरेज जो उनका था उसमें वो बार बार इलाके कॉन्कर करते जा रहे थे और उनको अल्लाह कामयाब करते जा रहे थे. तो ये सारे स्पॉइल्स और सारा कुछ माल और ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे जुंदुल रदियल्लाहु अन्हु ने बताया. तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु वाज वेरी हैप्पी. फिर उन्होंने बोला कि अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स, योर लायन, he was referred as the lion of Allah azza wa jal. Khalid ibn Walid was the sword of Allah. यानी आप देखिए कितने खूबसूरत टाइटल और लकब उनको मिले थे. So he's saying that your lion, Khalid ने एक another lion को अटैक किया है और वहां से उसका पीस ऑफ मीट लिया है. और indeed आजकल जो है औरतें इस टाइप के, यानी खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु अन्हु जैसे इंसानों को पैदा नहीं कर पा रहे हैं. एंड दिस शोज कि उनको कितना रिस्पेक्ट था, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को अपने सुप्रीम जनरल के ऊपर कितना रिस्पेक्ट था. May Allah be pleased with Abu Bakr radiallahu anhu, Khalid radiallahu anhu, and all the prophets of companions. Amin ya Rab. और जुंदुल जो ये न्यूज़ लेकर आए थे, जो कि बनु इजल ट्राइब के थे, वो एक अच्छे गाइड थे. तो उनको अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु उनसे खुश होकर फिर उनको एक तोहफे के तौर पे जो उनकी कैप्टिव्स में थी, जैसे प्रिजनर ऑफ वॉर्स में, उसमें से एक यंग वुमन को उनको गिफ्ट किया. A new confidence in Al-Madina. During his caliphate, अच्छा इधर एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगी बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट वन, कि आप देखें जो बड़े होते हैं ना, जैसे हम एज अ पेरेंट्स हम ले लें, या हम एज अ टीचर्स ले लें, या एल्डर्स ले लें, या हमारे अंडर जो भी होते हैं, वी फेल टू एक्नॉलेज पीपल हु अचीव समथिंग गुड. यानी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें हम सबसे पहले होते हैं कि हम उनको ताना तनकीद करें, हम उनके ऊपर गुस्सा करें या बरसें. लेकिन कभी अगर उन्होंने अच्छे काम किए तो हम, व्हाई डू वी फेल टू एक्नॉलेज पीपल, व्हाई डू वी फेल टू अप्रिशिएट. ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है. अब आप देखिए ये अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, ही अप्रिशिएट्स, ही गिफ्ट्स पीपल, ही विल एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो एक वर्ड ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो होता है ना, दैट गोज अ वेरी लॉन्ग वे. अगर हमने एक अपनी औलाद को उसके एक अचीवमेंट पे उसको हमने एक्नॉलेज किया तो वो उससे ज्यादा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अचीव करेगा. लेकिन इफ वी फेल टू एक्नॉलेज, हम हमेशा अपना म्यार इतना ऊंचा रखें कि वो बच्चा कभी वो टारगेट को हिट ही ना करे, तो एक वक्त आएगा कि जब वो बोलेगा कि देयर इज नो पॉइंट, I don't even want to try, I give up, because I know my parents are not going to be happy with me, they are not going to be satisfied with my achievements. तो एक पॉइंट आएगा कि the kid will stop trying. Never do that. जहां पर आप उसको रोकते हैं, उसको करेक्ट करते हैं, आप उसको डांटते भी हैं, आप रेक्टिफाई करते हैं, उसी वक्त अगर कोई अच्छा काम हो तो उसको भी एक्नॉलेज उतने ही विगर, एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ करना है. एंड डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अ पैट ऑन अ बैक works fantastic more than a slap on the face. So हमेशा ये जो पैट है उसको हमेशा याद रखें, encourage करें, और then you will see that goes for working guys also. If you have people working under you, be appreciative but don't go overboard. ऐसा नहीं है कि कुछ अचीव नहीं किया और अननेसेसरली करें, बिकॉज दिस आर द टाइप ऑफ नेगेटिव पेरेंटिंग दैट्स हैपनिंग, कि बच्चे ने कोई एक नॉर्मल सा जो उसका टास्क है वो किया और पेरेंट्स उसको इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं. एग्जैजरेशन नहीं है दीन का नाम है मुअतदिल बिहेवियर, अ वेरी मॉडरेट बिहेवियर. तो उसको मद्देनजर रखते हुए चलना है. बी वेरी मॉडरेट, बी वेरी वाइज and balance it, because that's how things happen in Islam. A new confidence in Al-Madinah. During his caliphate, the Muslims were victorious in the Battle of Kazma, and Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu sent 1/5 of the spoils of the war to the caliphate in Al-Madinah. This included a very expensive topi belonging to the Persian army leader, Hormuz, and an elephant, which was captured by the Muslims during the fighting. Many people in Al-Madinah had never seen an elephant before. Some only knew about Abraha's army of elephants, which he used to attack the city of Makkah. When the elephant was led through the streets of Al-Madinah, the people were astonished. This was the first battle that the Muslims had fought and won beyond the borders of Arabia, and it is inspired in the hearts of Muslims a new spirit of confidence and determination. अब ऐसा हुआ कि ये जो हुर्मुज की जो फाइट थी, बैटल ऑफ काजमा था, ऑफ कोर्स उसका 1/5 जो है वो मदीने में पहुंचा. तो इसके अंदर एक टोपी थी,
और एक एलिफेंट था। अब एलिफेंट्स जो है मुस्लिम्स ने पहले नहीं देखा था, उनको सिर्फ वो अब्राहा के किस्से से पता था कि आर्मी की आई थी मक्का में, बट उन्होंने खुद देखा नहीं था। जब उन्होंने देखा तो दे वर वेरी शॉक्ड, मदीने की स्ट्रीट में दे वर वेरी शॉक्ड टू सी के एलिफेंट क्या मखलूक है। एंड देन अरेबियन पेनिनसुला के बाहर फर्स्ट फाइट होके उस पर इतना बड़ी कामयाबी हासिल की थी, उसके वजह से मुस्लिम्स के दिल में क्या था, एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल वाज इंक्रीज्ड और उनका डिटर्मिनेशन आल्सो इंक्रीज्ड। Subhanallah, I love this. Simple garment of rough material. With the conquest of Al-Hira, Abu Bakr radiallahu anhu realized one half of his goal for Iraq. The stage was now set for attacking the Persians in the heart of their empire in Asham. To achieve this goal, Abu Bakr radiallahu anhu appealed for help from the people of Yemen and sent out missionaries with letters. People from all parts of Yemen were enthusiastic and eager to join the war effort. अब हीरा में जो है वो एक इनिशियल पर्शियन आर्मी को अटैक करने के लिए जो कामयाबी मिली थी, अब उनको अपनी आर्मी को आगे मेन सेंटर पे अटैक करना था, तो अशाम में अटैक करना था। तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने जो आसपास के इलाके थे यमन वगैरह, उनको लेटर्स भेजना शुरू किया, और यमन के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक थे और वो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को ज्वाइन करने के लिए राजी थे। More than 2,000 men came from Hamdan under the leadership of Habza ibn Malik al-Hamdani radiyallahu anhu. When the people of Yemen arrived in Al-Madinah, they entered the masjid of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hearing the Quran being recited, they became so fearful of Allah, they began to shiver and cry. While in a deep state of spiritual bliss, Abu Bakr radiyallahu anhu cried as well and said, "This is how we used to be, and then our hearts hardened." अब जब ये लेटर्स उनके पास गए यमन के पास, तो वहां से एक हमदान जो जगह है वहां से अंडर द लीडरशिप ऑफ हमजा इब्न मलिक अल हमदानी रदियल्लाहु अन्हु 2000 आदमी ज्वाइन हो गए मदीना में। जैसे ही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में दाखिल हुए और कुरान का रेसिटेशन जब उन्होंने सुना, तो वो कांपने लगे डर के मारे। वो कांप रहे थे और रो रहे थे, और फिर उसी रूहानी कैफियत के अंदर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु भी रो रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसे हुआ करते थे और फिर हमारे दिल जो है वो सख्त हो गए। अब मैं आपसे और अपने आप से क्वेश्चन करूंगी, हम में से कितने वो लोग हैं जो कि कुरान की आयतें सुनकर रोने लगते हैं? पहले नंबर पे तो हमें समझ नहीं आती, दूसरे नंबर पर हम कभी फोकस नहीं करते, तीसरे नंबर के ऊपर हमें जो है वो फीलिंग्स जो क्रिएट होनी चाहिए ना, एहसासात, वो आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते हमारे दिल में ये इमोशंस? क्यों हमारे दिल के अंदर दाखिल नहीं होती कुरान की आयतें? देयर इज समथिंग। हमारा दिल जो है ना वो इतने बैरक्स, इतने गेट्स बना के रखा हुआ है कि उसके अंदर कुरान का नूर, कुरान का जो एक ब्यूटी है वो अंदर नहीं पहुंच पाती है। हमें अपने दिलों को सख्त होने से बचाना है, हमें अपने दिलों के ऊपर जो अननेसेसरी कवरिंग्स चढ़ाई है ना उसको निकालना है, उसको नरम करना है, और हमें इस्तिकामत लानी, हमें अल्लाह से रो रो के दुआ करनी है, अपने नेक अमाल बनाना है, हमें इस्तगफार की कसरत करनी है, क्योंकि हमें भी स्टेज पे पहुंचना है कि हमारे सामने जब कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो हम भी कांपे, हम भी रोएं, हम भी गिड़गिड़ाएं अल्लाह के सामने। तब जाके हमें महसूस होगा कि ये वर्ड ऑफ अल्लाह है, ये है वो किताब जो कि मिराकलस किताब है, ये हमारे लिए गिफ्ट है। उस लेवल पे हमको पहुंचना है। मे अल्लाह मेक दिस पाथ ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग कुरान easy for us. Amin ya Rabb. Another Yemeni leader who had just arrived in Al-Madinah, Dhil Qila, was astonished to see that Abu Bakr radiallahu anhu was an old, skinny man with deep-set eyes and who was wearing a simple garment of rough material. There was no precious metal, gems or jewels on his clothes. However, his radiant face shone with piety and righteousness. अब एक अनदर लीडर आए यमन से जिनका नाम जिल किला था। वो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को देख के शॉक्ड हो गए। वो ओल्ड थे, दुबले पतले से थे, एकदम सादे, डीप सेट आईज थी उनकी, और बड़ा ही सिंपल सा रफ गारमेंट पहना था। ना तो कोई ज्वेलरी, ना गोल्ड, ना मेटल, ना कोई शान शौकत वाली बात, लेकिन उनके फेस पे जो था नूर था, उनके तकवे का, उनके नेकी उनके शक्ल पे चमक रही थी। Zilqila, on the other hand, was anything but simple. He was surrounded by 1,000 slaves and had a crown on his head. Whereas जो ये यमन के लीडर थे उनके आसपास 1000 स्लेव थे, खादिम खादिमा थी, और उनके सर पर एक ताज भी था। उनका गारमेंट जो था वो एम्ब्रॉयडर्ड था गोल्ड में, और प्रेशियस ज्वेल्स उस पे जड़े हुए थे। He was taken aback when he saw the clothes, the simplicity and the humbleness of Abu Bakr radhiyallahu anhu, who was not only his leader but the leader of the entire Muslim nation. अब आप सोचें, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का जो ओहदा था वो सिर्फ यमन नहीं, वो पूरे मुस्लिम नेशन के हेड थे। He was the first ranking officer, the first
person, the most important person, the Khalifa of the Muslim nation and the army. और उस आदमी की सादगी और आजिज़ी देखकर ये जो ज़िल क़िला था वो shocked हो गया. What was truly amazing for Dhil Qila was that Abu Bakr's simplicity and tattered clothes inspired a sense of awe and veneration. Dhil Qila saw a great humble man. यानी वो देखकर एकदम शॉक में पहुंच गया था कि ये आदमी सही में ग्रेट है, इसके अंदर कुछ बात है. He is a man of substance. He was so impressed with Abu Bakr radiallahu anhu that he removed all his fancy ornaments and put on simple clothing. Subhanallah, what a beautiful quality. हम लोग देखें, आप कई बार हमारे सामने ना कुछ अच्छी चीज आती है, कोई एक बंदा होगा जो कि हमसे बेहतर होगा, औहदे में बड़ा होगा. और वैसे भी आप देखें, if you just read some biographies of some most successful people, like for example, I was reading about J.R.D. Tata and all these big business tycoons, okay? ये ना ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा शो ऑफ या ज्यादा फ्लैटरी में नहीं बिलीव करते हैं. दे विल बी क्लैड इन वेरी सिंपल क्लोथ्स. दे वोंट बी शोइंग ऑफ देयर गैजेट्स एंड देयर मनी हियर एंड देयर. दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर टास्क एंड सुभान अल्लाह बहुत हम्बल और आजिज होते हैं. अब आई एम टेकिंग इस दुनिया के एग्जांपल्स ताकि यू कैन रिलेट विद सम थिंग्स. Whereas आप देखेंगे कि जिनके पास नया नया पैसा आता है ना, वो एक अलग तरीके से उसको शो ऑफ कर रहे होते हैं. शो ऑफ इन एनी वे एट एनी लेवल इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इस्लाम, राइट? तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि स्टे हम्बल. आपको कितने भी बड़े से बड़े दर्जे मिले, कितने भी अल्लाह ताला आपको नवाजे, लेकिन स्टे ग्राउंडेड. Okay, end of the day you are a slave to Allah. End of the day you know your place, कि आप कहाँ पर मिलने वाले, मिट्टी बनने वाले हो. तो अपनी जगह नहीं छोड़नी है. तीसरे नंबर पर ये कि ये सारी जो क्वालिटीज है ना, एक्चुअली में इंसान को ग्रेट बनाती है. ओके, जब आप सिंपल होते हो, हम्बल होते हो, ये आप में कितना दीन उतरा है उसकी पहचान है, कितना इल्म आप रखते हो उसकी पहचान है. तो हमेशा stay humble, stay grounded and stay simple. Now by simple don't mistake me कि अल्लाह ने जिस तरीके से आपको नवाजा है उसके ऑपोजिट आप अपने आप को दिखाएं. यानी but we know very well कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, we discussed this chapter earlier, कि उनकी जो सेल्फ अर्निंग्स थी उसमें से भी उन्होंने ट्रेजरर को बोल के कट कर दिया था. तो ओरिजिनली ही इज नॉट अ रिच मैन, बट before coming into the fold of Islam, he was a businessman and काफी lavish lifestyle था and everything. But slowly and eventually, जैसे जैसे उनका रोल आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे दीन की और ज्यादा फहम आने लगी और जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, he humbled himself to this level. Okay? तो अब देखिए आप, ये भी जो दिल किला जो है, जो यमनी लीडर हैं, उनकी भी क्वालिटी देखें आप. उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज नोट की अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु में, और उन्होंने इमीडिएटली ही चेंज्ड हिमसेल्फ. ही रिमूव्ड ऑल द ज्वेलरीज, ऑल द ऑर्नामेंट्स, और अपने आप को उन्होंने एक सिंपल क्लोथिंग उन्होंने भी स्टार्ट कर दी. हिज पीपल डिड द सेम. उनकी देखा देखिए, लीडर जैसा होगा, ठीक है, जहां इंजन जाएगा वहां डब्बे जाएंगे. लीडर का देखा देखी लोगों ने भी कॉपी करना शुरू कर दिया. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स दिल किला वाज सीन इन द मार्केट प्लेस ऑफ अल मदीना वेयरिंग अ रोब ऑफ शीप स्किन. यानी बहुत सिंपल एंड हम्बल शीप स्किन की रोब उन्होंने पहनी है. His fellow clansmen were shocked to see him and said, "You have exposed and humiliated us in front of the people of the Muhajiruns and Ansars." In his defense, Dhil Qila said, "So do you want me to be the tyrant in Islam just as I was a tyrant during the pre-Islamic days of ignorance?" अब आप देखिए, कई बार हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो भी सीधा हमें होने देते नहीं है. जब कोई एक लड़की हिजाब का डिसीजन लेती है, अब वो हिजाब पहन के जा रही है, अब सारे शुरू हो गए, तुम तो बड़ी दीनी हो गई हो, तुमको ये वो, मतलब नेगेटिव कमेंट्स. यू नो हाउ इट हैपेंस. हमें जो है ना, अपने आसपास ऐसे लोगों की कंपनी अल्लाह ताला दे जो हमको हमारा दीन का रास्ता, दीन का सफर जो है वो आसान करने के लिए मददगार हो, ना कि हमको दे पुल ऑफ फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ. तो सिमिलरली इनके जो क्लाइंट्समैन थे वो कह रहे हैं, आप हमको मुहाजिरून और अंसार के सामने हमें शर्मिंदा कर रहे हो. उस पर ज़िलक़िला ने इतना अच्छा जवाब दिया कि क्या तुम मुझसे वही एक्सपेक्ट करते हो मामला जो मैं जहालियत में था, दौरे जहालियत में था. No, by Allah, obedience to the Lord is not achieved except through humbleness and a concerted effort to take every little from this world. इस दुनिया से क्या लेना है, बहुत कम, लेकिन अल्लाह को हमें, अल्लाह के सामने हमें आजिज रहना है. The kings of the Yemen followed Dhil-Qila's example, removed their heavy crowns and embroidered clothes and started to wear garments made of rough, coarse material. They gave their precious attire to Abu Bakr radiallahu anhu, who placed it all in the Muslim treasury. What a beautiful way. देखें कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने ये precious things का इस्तेमाल किया. Normal rough clothing में आ गए, अपनी ज्वेलरी, अपने क्राउन्स, अपने एम्ब्रॉयडर्ड रोब्स, हेवी रोब्स एम्बेडेड विद प्रेशियस ज्वेल्स उठा के उन्होंने मुस्लिम ट्रेजरी में दे दिया. हो गया चैरिटी फीस. अब वो पहुंचा आगे. आप मुझे देखें, वो पहनकर झूठी शान लेकर चलना फिरना, लोगों की वाह वाह एंड हसद और उयून को अट्रैक्ट करना कि अल्लाह की राह में देकर आगे काम आने वाली चीजों में पहुंचाना, कितना ब्यूटीफुल सौदा है.
After the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiallahu anhu was the one man who best epitomized Islam. It was his actions rather than what he said that convinced others of his piety and faith in Allah. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स थे वो थे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, जिनके एक्शंस और अमाल को देखकर लोग दीन की तरफ माइल होते थे. So may Allah make us among those जो कि सिर्फ ब्लैबर ना करें, सिर्फ बातें ना करें, बल्कि अपने अमाल से, अपने इखलाक से, अपने मामलात से दीन को फैलाएं और हमारे ऐसे मामलात देखकर लोग दीन की तरफ दौड़े चले आए. So alhamdulillah, it's about time. Any questions so far? We are closing now. Leave. Okay. Any questions? Open forum. You can ask anything. Otherwise, we'll be closing for today. हेलो. Yeah, Rukhsar, go ahead. Assalamu alaikum. हाँ जी, वालेकुम सलाम. अच्छा, आपने बोले ना वो उलूमुल कुरान का, तो वो प्लीज करेंगे हम. अच्छा ठीक, इंशाल्लाह मैं ना वो उसकी नोट्स डालती हूँ ग्रुप में. आप जस्ट हाँ. इट्स टेक्स्ट है, तो इंशाल्लाह वो आप पढ़े. ओके. उससे आपको ना द हिस्ट्री ऑफ कुरान इंशाल्लाह पता चलेगी बाकायदा. इट्स अ वेरी नाइस ब्रीफ जर्नी, लेकिन वो मेरे हिसाब से हम लोगों को जानना जरूरी है. तो इंशाल्लाह आई विल शेयर इट इन द ग्रुप. हाँ, इंशाल्लाह. ओके. और any other questions, or we can call it off for today? Okay, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah we will meet tomorrow.